एक ही कॉमन मिस्टेक होता है कि लोग अपना जो रिस्क एपेटाइट होता है ना और इन्वेस्टमेंट होराइजन उसको असेस नहीं कर पाते हैं। अर्निंग फोरकास्ट इज इम्पॉर्टेंट बट मल्टीपल फोरकास्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो मैं बोलूँगा कि आप 50% म्यूचुअल फंड में रखिए, 50% SIP में रखिए। कभी कभी हमको शॉर्ट करके पैसा बनाना सीखना चाहिए। ईजी फेस बुल रन इज ओवर। हम लोग बुल रन में हैं, यस, बट ये डिफिकल्ट फेस है बुल रन का। Hello, everyone, and welcome to another episode of Bazaar and Beyond, where we dive deep into the world of finance, investing, and more to help you make smart investment decisions. और मैं हूं आपका होस्ट विवेक अनंत। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं संदीप टंडन। ही इज द फाउंडर एंड CIO of the Quant Group, which also runs the Quant MF. He began his career in the money management space in the early 90s with GIC Mutual Fund. He's also worked with ICICI Securities, Kotak Securities, among others. He also worked with the Economic Times Research Bureau. Thank you, Mr. Tandon, for joining us. I wanted to start with your journey in the AMC space, how this career of yours came about. You've been there in this space for almost like 3 decades, in the early 90s. Just give us a little bit of background, how you started Quant and then the MF, which has become so popular over the last few years. So I started my mutual fund journey as a summer trainee. Okay. And I'm talking about way back in 93. So a lot of people don't know. I was part of a GIC mutual fund, Okay. which did a JV with George Soros in those days. Okay. Today, the George Soros is not a good name to take. But that time he was a high-profile guy and he Okay. created ruckus in UK. Okay. So it was a phase where I started my career. Try to understand. That's the way my macro thesis come from background, because very early stages we got associated. Okay. And that time, I distinctly remember I purchased 2 of his books, and maybe I have not understood even 10% of that at that stage. 100% I still don't understand even today also. Nice. So that was the early stage, and then we moved to IDBI Mutual Fund as the first employee, built that company from scratch. Okay. And 2018, when we took over Escorts Mutual Fund, so it's good fun, being a summer trainee in a mutual fund business and then to own a small mutual fund was a good feeling. Okay. And this transition over the decades, how we have seen the space grow. What are some of the learnings that you have had in terms of how the industry itself has performed? And what you thought you had in the early 90s? See, to be very candid with you, people were very reluctant initially about the mutual fund space, okay? And this industry was predominantly dominated by large broker, prop houses, or ultra HNI, large family offices. So retail as a thought process was not there. That's the reason initial phase of mutual fund was very difficult, okay? And that too, it happened after decade of that UTI 64, people have bad experience. Early 2000 mein jo hua tha. Yeah, and then Morgan Stanley fiasco also happened. I'm talking about when I started an IDBI mutual fund way back in 2000. I'm talking 1995. Okay. So the initial phase, people have bad experience, okay? And that's the reason it has not taken off. But if you really look at in last few years, it has picked up by now the real retail is participating. Okay. I always talk about a bull run is always had a leadership. So why I'm giving this example, because if you recollect 2003 bull run, June 2003, which started, the leadership was with the FIs. First time we heard all these T. Rowe Price and Goldman Sachs and Fidelities and Capital of the world. All these terminology was new. We were only used to UTI and LIC, and maybe up to small extent some of the banks' treasury. Okay, they were not popular. Okay, and they made tons of money. And the second, when the 2008 debacle happened of the Lehman crisis, or GFC one we call it, since then April 2009 we saw the next bull run was led by the HNI family office, and various AIF was born in that time. So that was a phase which was they were leading the bull run. And post-COVID, that is 2020, April 2020, the current bull run which is going on was led by real retail, okay? And that's the reason I am saying post-COVID, the retail-centric mutual fund have grown a lot, okay?
Because there are two reasons for is a most of the investors sitting at home, they have ideal time and they have savings also, and this is the first time they ventured into it. Okay, and they didn't have much to lose. Okay, where a lot of family office or institution investor were actually worried about COVID. Okay, and more the wealthy the person, he is more worried, or he or she was more worried about her life. Okay, a real investor, life has less importance. Okay, as compared to filthy rich people. This is the time I spotted they tasted this space. Okay, and their mark to mark gains when the rally started was so meaningful, and that's the reason even 15-20% correction doesn't disturb them, because they have made so much money. And that's the way I felt something has changed in the mutual fund space, because retail investor is come back. Okay, and what is very important to understand, the retail investor has a very large base. So like you can say maybe 50-60 FIs came to India. Okay, the 2009 bull run HNI, what, maybe 50-60-100, maybe 1,000-2,000 HNI family office. Now this bull run retail, you look at the base of real retail, look at the population, the young demographic, the young population we have, young investor we have. It's a very sizable number. And that's the reason I say this bull run has much longer tenure, because the sheer base is very different. So I expect this bull run can last maybe for a few decades. Okay. Now I'm not saying that every bull run has like easy phase, like you have vertical linear moves. No, you will see correction and consolidation also. But if you ask me for next 22 years perspective till 2047, where Indian demographic cycle peaks out, till then I think they will be in the driving seat. करेक्ट. अपने इन्वेस्टर्स के बारे में बात किया, रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली, कोई कॉमन मिस्टेक्स जो आपने देखे हैं जो रिपीट होते हैं, या कोई नए मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं इतने आपके जर्नी में जो आपने देखा होगा? एक ही कॉमन मिस्टेक होता है कि लोग अपना जो रिस्क एपेटाइट होता है ना और इन्वेस्टमेंट होराइजन उसको असेस नहीं कर पाते हैं. सो जब बुल रन आता है, हाइप क्रिएट होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉइस होती है, तो सबका रिस्क एपेटाइट हाईएस्ट होता है हर बुल रन में. टॉपिक ऑफ द साइकिल रिस्क एपेटाइट फॉर एवरी इन्वेस्टर इज हाईएस्ट. एवरीबडी सेज आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. फिर उसका टेन्योर बढ़ जाता है, उसका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, द कॉन्फिडेंस लेवल ही और शी कम्स एट द मार्केट इज ऑलवेज हाई. तो हम लोग हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि लोगों को कैरी अवेड नहीं होना है. ओके, अब जिस चीज़ की हम लोग इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम इसको कैसे असेस करें, तो हम बोलते हैं कि आपको वेल्थ मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आप अपना बिहेवियर खुद एनालाइज करिए कि 2000 का क्राइसिस आया था, जो अपना .com बबल था, तो हमने कैसे रिएक्ट किया. अगर आप जैसे हर्षद का फेस था, अगर कोई पुराना आदमी है, बहुत लोग उतने पुराने नहीं है मार्केट में, कि हर्षद के फेस में हमने क्या किया था, 2000 में हमने क्या किया, 2008 में तो बहुत लोग थे कि 2008 का जब लीमन क्राइसिस का मेल्टडाउन हुआ था ग्लोबली, तो हमने कैसे रिएक्ट किया. 2018 में जब साइकिल पीक आउट हुई थी, जनवरी 18 या दिसंबर 17, उसके बाद मार्केट शार्पली करेक्ट हुआ, तब हमने कैसे रिएक्ट किया. कोविड आया 2020 मार्च 2020, तो हमने कैसे रिएक्ट किया. अगर हम इसको एनालाइज कर सकें अपना कैरेक्टरिस्टिक को, कि हमने कितनी जल्दी गिव अप मारा था, तो आपको आंसर मिलेगा कि आप रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कि आपके पास पेशेंस हैं, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रिक्वायरमेंट होता है. इक्विटी मार्केट में देखिए थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट लगता है. ओके, सो वो रिस्क एपेटाइट आप में है, उस तरह का रिस्क प्रोफाइलिंग आपके पास है क्या. अगर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत आंसर मिलेंगे. मैं खुद उस चीज़ को देखता हूँ कि हमने क्या किया था. ये मार्केट में ना गलतियों से सीखा जाता है. ओके, आप अब ये तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि गलती के बिना हम आगे बढ़ गए. कोई गॉड स्टेटस किसी के पास नहीं है. वैसे ही होता है. करेक्ट. और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है ना, कि गलतियाँ तो आप करेंगे, लेकिन आप वो गलतियों को रिपीट नहीं करें मार्केट में, तो आप ज़्यादा पैसा बनाएंगे. तो अगर कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है, फिर एज एन इन्वेस्टर होता भी है ना, लोग कभी कभी अपनी गलतियां मानते नहीं हैं और दे कांट सी, एक सेलेक्टिव हियरिंग टाइप होता है. हाउ डज एन इन्वेस्टर इन विद दैट काइंड ऑफ एन इम्पेडिमेंट डील विद इन्वेस्टिंग और प्लानिंग देयर? नहीं, अगर कोई बहुत ज़्यादा रिजिडिटी के साथ आता है, या जिसको हम बोलें कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना है, वो हमारे मार्केट में सक्सेसफुल नहीं रहेगा. ओके, क्योंकि उसके अपने थॉट प्रोसेस हैं, वो उस चक्रव्यूह में ही रहता है कि ये मेरे को सब समझता है, मुझे तो पता है, मुझे तो आता है. ओके, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो हमारे मार्केट में देखिए जो लोग सक्सेसफुल हुए ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल लोग रहे हैं.
जितने भी आप सक्सेस इन्वेस्टर की अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि बहुत वो एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिफाइड थे, ओके। ऐसा कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड के लोग थे, नो। उनका फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना मार्केट में एक अडेप्टिव एसेट एलोकेशन है उसकी, वो प्रिवेलिंग मार्केट को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, ओके। अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसको समझ जल्दी पाते हैं, ओके। और उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री लगती हो। Okay. तो एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन की चीज़ें होती हैं, अगर उसको आप समझ पाओ कि माहौल कैसा है, उस माहौल में अगर आप बहुत क्राइसिस के फेस पे आप, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करो, और वो एक कॉमन आदमी कर पाता है, ओके। Okay. अगर उस फेस में आप कॉन्ट्रा कॉल लेना सीख जाओ, उस फेस में आपका कन्विक्शन आए कि बहुत कुछ अगली हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ, तो आप वहाँ पे कॉल ले पाओगे। तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो बहुत आगे नहीं जाएगा इस मार्केट में। Fair enough. इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर कोई एक थॉट प्रोसेस और एक इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है किसी का, आप एक फंड हाउस का होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, दैट इन्फॉर्म्स इन्वेस्टिंग फिलोसफी, हाउ फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट। मगर कभी कभी इंट्यूशन ऑल्सो वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। आई मीन, लोग बोलते हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट में ही maybe some intuition helps because they have an experience, so that informs their action sometimes. तो इन दोनों का जो तालमेल जो रहता है, से फ्रेमवर्क्स के अगर कोई इन्वेस्ट करता है, फंड मैनेजर या कोई रिटेल इन्वेस्टर, वर्सेस इंट्यूशन, इसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज दी समटाइम्स आर एट लॉगरहेड्स विद ईच अदर। देखिए, मैं को इस तरह से इसको एक्सप्रेस करूँगा कि देखिए ये पूरा डेटा का गेम है। जैसे हम लोग अपने एक फर्म में फिलोसफी लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इज अवर रिलीजन एंड डेटा इज गॉड, देयर इज नो स्पेस फॉर सब्जेक्टिविटी, ओके। आप जहाँ सब्जेक्टिविटी लाते हैं वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को देखेंगे तो आंसर मिलता है। अभी जो इंट्यूशन की आपने बात करी, मैं इसको अलग तरीके से देखते हुए, आपका इंट्यूशन अगर बिहेवियर थीसिस से जाएंगे, आता कैसे? आपको कोई सपना तो आता नहीं है कि ये मुझे करना चाहिए था। आपका इंट्यूशन आपके एक्सपीरियंस से बिल्ड होता है। आप जिस तरह का भी एक्सपीरियंस रहा है, आपने सक्सेस फेलियर सबका कॉम्बिनेशन होता है, किस एनवायरनमेंट में आप पढ़े बड़े ग्रो हुए, उस तरह का भी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। तो जो आपका इंट्यूशन होता है कि वो आपका एक बैकग्राउंड है, आपका एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टाइम इन द मार्केट, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितने समय से हो और आपने कितनी साइकिल्स देखी और उस साइकिल में आपने कैसे बिहेव किया। तो वो हिसाब से अगर आपका इंट्यूशन बिल्ड होता है तो वो इंट्यूशन अच्छा है। खाली एक होता है ना फील फैक्टर, मुझे लगता है, तो उसकी वैल्यू नहीं है हमारे बाज़ार में। लेकिन आपका वो इंट्यूशन आपके एक्सपीरियंस के साथ आता है तो आपको हेल्प करता है। Fair enough. आपके जो इन्वेस्टर्स, आई मीन, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव इन्वेस्टेड इन क्वांट्स स्कीम्स एंड दे आल्सो एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल इन द फ्यूचर कंसीडरिंग पास्ट परफॉर्मेंस। मगर कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म में वो रिजल्ट्स नहीं दिखता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। हाउ डू यू मैनेज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस इन सच एन एनवायरनमेंट? देखिए, हम लोगों को 2-3 चीज़ें, अगर हम जैसे इंडिया की बात करें कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंसेप्ट रिलेटिवली नए हैं। अब जैसे बहुत लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म थीसिस की कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली पैसा बनता ही है, ओके। बट जैसे मैंने आपको बोला है कि रिस्क एपेटाइट हमेशा पीक ऑफ द साइकिल पे ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म टॉप हो, वो एक कोई भी साइकिल के अंदर हम हो, तो एक आपको मार्केट में टॉप ट्रफ एंड क्रस्ट दोनों बिल्ड होते हैं। तो अगर आप पीक ऑफ द साइकिल पे अगर आते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आपको थोड़ा तकलीफ होता है। तो हम लोग इन्वेस्टर को 2 चीज़ समझाते हैं कि हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को थोड़ा समझना चाहिए, ओके। बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। खाली एब्सोल्यूट रिटर्न देख लिया कि बेंचमार्क के रिलेटिव देख लिया या पीयर्स ग्रुप के रिलेटिव देख लिया, तो वो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट एनालिसिस। और ये गलतियाँ तो मैं बहुत सारी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में भी देखता है कि लोग जो हम लोग बोलते हैं ना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जो रिस्क मैट्रिक्स को वो एक एक्चुअली भी एक एकेडमिक बात रह जाती है, पेपरों पे रह जाती है, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ओके। क्योंकि जब बुल मार्केट होता है ना तो लोगों को वो चीज़ें पसंद भी नहीं आती, उनको लगता है लाइफ लॉन्ग मेरे को आउट परफॉर्मेंस चाहिए। क्या रिस्क लेके वो आउट परफॉर्म कर रहे हो, वो असेसमेंट बहुत कम लोग करते हैं। जैसे हम अपनी फैक्ट शीट में उस चीज़ को डालते हैं और थोड़ा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए,
थोड़ा समय तो लगता है। ओके, मैं कहता हूँ कि अभी भी बहुत लोगों को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की थीसिस समझ में नहीं आती है। ओके, एब्सोल्यूट और रिलेटिव देख लेते हैं तो वो तो उसमें काम होना चाहिए। वैसा नहीं है कि हमने वही क्या रिस्क लेके क्या रिटर्न कमाया। देखिए, जब बुल रन होता है तो अब हम रिस्क का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं लोग। लेकिन जब डिफ़िकल्ट फेस आता है या मार्केट एक टर्मोइल फेस में जाता है, अगर आप उस समय आपको रिस्क को नहीं एसेस करेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए यूज टू नहीं हो। बट क्या होता है, ये जो मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा समय के बाद आती है। अब जैसे इंडिया में बात करें, अपने अपने देश की बात करते हैं, तो जो हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं, जो 10 साल से हैं, 20 साल से, वो इस थीसिस को समझ चुके हैं। ओके, तो उनमें थोड़ी मैच्योरिटी ज़्यादा होती है कि वो इतना, अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, उनका पैसा बहुत बन गया था इसलिए उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी, इसलिए वो होल्ड कर पाए। मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी। ओके, Isn't that also true? देखिए क्या होता है कि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू की इम्पोर्टेंस नहीं है। हर आदमी को अपनी कैपेसिटी, जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से जज करना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज का इम्पोर्टेंस है रादर देन एब्सोल्यूट नंबर। ओके, अब कोई अभी अर्ली स्टेज के करियर से स्टार्ट कर रहा है और कोई 25 साल से या 50 साल से इस मार्केट में है, तो उसका वेल्थ तो ज़मीन आसमान का अंतर होगा। Correct. तो आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं कंपेयर करेंगे, आप Correct. हमेशा उसको एक तो रिलेटिव बेसिस पे देखेंगे और एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे, भाई मेरा परसेंटेज, मेरे को कितना गेन हुआ या Annualized लॉस कितना हुआ। होता है? Correct. करेक्ट। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए, और वो क्या, जैसे मैंने आपको बोला, इस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स थोड़े समझ के बाद आता है, जब लोगों ने 2-3 साइकिल देख ली। ओके, जैसे हमने कई साइकिल्स देखी, तो साइकिल देखने के बाद समझ में आता है कि बस बॉटम में पैनिक नहीं करना है। ओके, वो आपका एक्सपीरियंस के साथ आता है, और अपने पैसे से आप जब खुद इन्वेस्ट करते हैं या खुद मैनेज करते हैं, तो आप जल्दी सीखते हो, क्योंकि आपने वो पेन अपने आप से देखा है। ओके, और वो पेन खाली आपने क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि अरे मैंने उसमें डाला था ऐसा हो गया। जब आप उस पेन को खुद फेस करते हैं कि अभी मेरे को क्या करना है, डायरेक्ट इक्विटी में आपने डाला है या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में डाला है जहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो आप थोड़ा समझते हो, ओवर अ पीरियड टाइम उस चीज़ को सीख पाते हो। तो ऐसे ही मैंने बोला कि जैसे बहुत सारे लोग पोस्ट कोविड ही इस मार्केट में आए हैं, उनके लिए भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न समझना थोड़ा भारी काम है, क्योंकि उन्हें वो साइकिल देखी नहीं। हम लोग जैसे बोलते हैं, दे वर ऑल बॉर्न इन बुल मार्केट। ओके, तो आपको मल्टीपल साइकिल्स जब आप देख लोगे तो आप अपने आप मैनेज करोगे। तो एक्सपीरियंस है ना, बच्चा होता है, उसको इतनी चीज़ें नहीं पता हो, मैच्योरिटी के साथ हम लोग सीख जाते हैं ना, तो सेम लॉजिक वहाँ पे भी काम करता है। आप अगर जस्ट एज एन असाइड अगर आप सोचें तो इंडिया का इन्वेस्टिंग क्लास, जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स, टीनेजर है कि मिडिल एज्ड है, और या किधर है इन दैट ट्रेजेक्टरी? देखिए, आज की तारीख में अगर आज की बात करें तो टीनेज नहीं है, मिडिल क्लास है, मिडिल एज में लोग हैं। Alright. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं अराउंड 35 ईयर्स के आसपास। ओके, वहाँ पे थोड़ा पैसा है, या फिर बहुत सारा पैसा पोस्ट रिटायरमेंट भी आता है, जब आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती तब आपके पास सेविंग ज़्यादा होती है। बट अगर हम डेमोग्राफिक के एंगल से देखें तो यूथ का फेवर में है। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या हमारी अपनी ब्रांडिंग हम करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग बहुत इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट जनरेशन को क्या चीज़ एक्साइट करती है, नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो फ्यूचर है आपका। अगले अगर हम लोग अपने बिजनेस 20-30 साल का देखते हैं, जो बच्चा आज यंग है वो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर होगा, तो आपको उसको यंग स्टेज पे पकड़ना है, यंग स्टेज पे उसको पर्सपेक्टिव चेंज करना है, यंग स्टेज में उसको आर्टिकुलेशन करना है, या यंग स्टेज पे उसको एजुकेट करना है। तो पूरा फोकस आपका, अभी जैसे इंडिया में डेमोग्राफिक आपके फेवर में है, Correct. बाकी बहुत सारे कंट्रीज में डेमोग्राफिक आपके फेवर में है, तो वहाँ पे ये थीसिस काम नहीं आएगी। Fair enough. वहाँ पे आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा ऐसा म्यूचुअल फंड, वो ऑब्वियसली ओल्ड पीपल होंगे, क्योंकि उनके पास ही वेल्थ है। ओके, और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सर अभी मैं ना थोड़ा आई जस्ट वांटेड टू चेंज ट्रैक अ लिटिल बिट। अभी आपका इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के बारे में थोड़ा बात करना था। सपोज आप कोई एक अंडरवैल्यूड सेक्टर के खोज में, अब यू आर लुकिंग फॉर एन अंडरवैल्यूड सेक्टर इन द मार्केट, मिले या ना मिले, मगर इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पे हर चीज़ को लोग हाइप करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग सनराइज सेक्टर, कैसे, हाउ डज दैट प्रोसेस फॉर यू वर्क टू फाइंड दैट नेक्स्ट से वैल्यू बाय इन एनी सेक्टर? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि आज की तारीख में बहुत हाइप है। ओके,
अगर आप मेजॉरिटी फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, एफआईज, हमको सिखाया क्या गया है कैश फ्लो देखना, ओके, फ्री कैश फ्लो देखना, ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो, ओके। हम लोग बहुत फ्री कैश फ्लो पे फोकस आते हैं कि पैसा बनता है कि नहीं बनता है, ओके, उधार लेके तो नहीं प्रॉफिट बना रहे हो, ओके। अगर बट मार्केट में जिस तरह का न्यू एज कंपनीज में नॉइज़ हुआ तो हमने वो फिलॉसफी हटा दी, ओके। अब हम आ गए इतने टाइम सेल्स को देंगे, ओके। तो जैसे ये हम जिसको बोलते हैं कैरेट अवे हो गए। देखिए कोई चीज़ अर्ली स्टेज का ट्रेंड होता है, ओके, जैसे आपको इसको बोलते हैं कि कोई डिकेडल अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है। जैसे इंटरनेट आया तो 2000 में फेल हुआ, लेकिन बाद में 2008 के बाद वो ई कॉमर्स बहुत बिल्ड हुआ और आज ई कॉमर्स के बिना हम रह नहीं पाते हैं, ओके। और कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड थिंग है, टेक्नोलॉजी पे है। लेकिन अगर यही चीज़ कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आज हो जाए, आज की तारीख में जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर थोड़ा हाइप क्रिएट हो गया है, ओके, कोई भी तरह की चीज़ें अगर हम लोग बात करें, यूटिलिटीज़ कंपनी को लोग 50-100 मल्टीपल देने लगे हैं, ओके, क्योंकि ये सनराइज सेक्टर है। हमें वहाँ थोड़ा सा कॉशियस में हो रहता है कि हम लोग एक फ़िलॉसफी है कि हम लोग प्योर वैल्यूएशन पे तो नहीं जाते हैं। अगर आप प्योर वैल्यूएशन पे जाएंगे तो आप ये शेयर कभी नहीं खरीद पाएंगे, ओके। तो हम लोग हमेशा अपने वीएलआरटी फर्म में बात करते हैं वैल्यूएशन एनालिटिक, रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स और लिक्विडिटी एनालिटिक्स, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वो तीनों मैट्रिक्स में वो चीज़ें क्वालिफाई करती हैं तो हम उसको लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया कि कोई चीज़ अंडर वैल्यूड कैसे है, जैसे आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर चल रहे हैं, ओके। आज की तारीख में भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ग्रॉसली अंडर ओन्ड है वो स्टॉक्स, और काफ़ी स्टॉक तो हेटेड टेरिटरी में है, डिसलाइक टेरिटरी में है, किसी को लेना ही नहीं है, ओके। तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है, ओके। आप कभी 6 महीने जल्दी हो सकते हो या 8 महीने जल्दी हो सकते हैं, कभी आप साल भर भी जल्दी हो सकते हैं। तो वो पेशेंस का गेम हो जाता है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, और फिर भी हम खाली एक स्टॉक में तो पैसा डालते नहीं हैं कि अगर हम उसमें थोड़ा जल्दी भी हो गए और पेशेंस नहीं था मेरे पास तो हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी देखिए मिलती है, ये कहना सही नहीं होगा कि आज की तारीख में वैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम लोग को वैसी अपॉर्चुनिटी आज भी मिल रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ होता है कि एक हाइप बिल्ड हो जाता है। जैसे आज जैसे मैंने आपको बोला न्यू एनर्जी का, सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजी, तो कोई भी आदमी कोई भी प्राइस पे कोई भी चीज़ लेने को तैयार है, ओके। हमको उससे बचना चाहिए, ओके। देखिए कोई भी चीज़ ग्रोथ है, ग्रोथ एट एनी प्राइस की एक साइकिल थी। अगर हम जैसे साइकिल्स की बात करें तो ग्रोथ एट एनी प्राइस वाली जो थीसिस थी वो 2012 से लेके सितंबर 2021 तक वो साइकिल प्ले आउट हुई। उस साइकिल का ग्लोबली पीक आउट हो गया। अब जो साइकिल है वो वैल्यू की है। अगर हम बोलें कि एक नेक्स्ट डिकेड का क्या व्यू है, तो वैल्यू ज़्यादा आपको रिटर्न देगी बजाय ग्रोथ के। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रोथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हमने को, लेकिन एम्फेसिस कहाँ होना चाहिए, वैल्यू पे। तो ग्रोथ तो देखिए हम लोग ढूंढते ही हैं, ओके। बट अगर एक लार्जर थीसिस समझ में आ गया कि वैल्यू थीसिस में डाउनसाइड कम है, वैल्यू थीसिस ढूंढ के जहाँ वैल्यू थीसिस के अंदर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अंडर ओनरशिप मिल रही है, वो स्टॉक और सेक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो मिलते हैं अपने को। काफ़ी अब जो रिस्क के बारे में अभी बात कर रहे थे, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लोग जब अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं दे डोंट नो दैट से कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है, से दे आर नॉट डाइवर्सिफाइड इनफ। ऐसे कौन से रिस्क हैं जो आप रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलना चाहें कि ये ध्यान में रखिए, आप क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो के बारे में हो या उनके पर्सनल फाइनेंस के बारे में, विच यू हैव सीन विद योर इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स ओवर द इयर्स दैट पीपल मिस मोस्ट ऑफ द टाइम? तो ये सबसे पहले जैसे आपने पॉइंट बोला कि कंसंट्रेशन रिस्क, आप लोग कंसंट्रेशन रिस्क हमेशा स्टॉक से देख लेते हैं, करेक्ट। क्योंकि जैसे हमको सेबी ने कुछ चीज़ें, हम लोग को एक प्रोफेशनल फंड हाउस हैं तो काफ़ी रिस्क की चीज़ें वेल डिफाइंड है। जैसे हम कोई भी स्टॉक्स में 10% के ऊपर हमारी होल्डिंग हो ही नहीं सकती, 10% ऑफ द कंपनी हम नहीं ले सकते। फिर हमारा कोई भी स्कीम में सिंगल स्टॉक 10% ऑफ माई स्कीम नहीं हो सकता, ओके। उसी तरह से हमारे इंटरनल चीज़ें होती हैं कि हम एक ग्रुप में इसके बियॉन्ड एक्सपोजर नहीं लेंगे, एक सेक्टर में इसके बियॉन्ड एक्सपोजर नहीं लेंगे, एक सब सेक्टर में इसके बियॉन्ड एक्सपोजर नहीं। वो आपकी रिस्क मैट्रिक्स इंटरनल डिफाइंड होती है। उतना तरह का नॉलेज या एज रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होता है, ओके। तो हम लोग उसको दो चीज़ तरीके से समझाते हैं कि जो चीज़, पहला तो कि स्टॉक से आप कोई भी स्टॉक में आप 20% 30% लोग नहीं लेना चाहिए, ओके। एक 8-10% के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए।
एक वो इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग देखते हैं, बट उसमें क्या होता है, कोई एक बुल रन आता है टेक्नोलॉजी से, मैं देखा 2000 का बुल रन था, तो 90% लोगों के पोर्टफोलियो में सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक थे, ओके, या .com वाले स्टॉक्स थे। तो वो बबल बस्ट हुआ तो आपको मैसिव इरोजन हो गया, फिर आपका 90% वेल्थ इरोड हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, आज न्यू एनर्जी चल रहा है, न्यू एज कंपनीज हैं, या अपना कोई टेक में है, या कोई सेमीकंडक्टर में, इस तरह की चीज़ों में लोगों का पोर्टफोलियो स्क्यूड हो जाता है। तो वो स्क्यूनेस आपको स्टॉक स्पेसिफिक नहीं दिखती है, लेकिन क्यूमुलेटिव मैनर में वो स्क्यूनेस एक ग्रुप की तरफ बढ़ जाती है, एक स्टाइल की स्टॉक्स की तरफ आप स्क्यूड हो जाते हो। वो स्क्यूडनेस भी अवॉइड करना चाहिए, वहीं आपका कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक कंपनी में लिया, ओवरऑल सेक्टोरल बाइसिस भी हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा रिस्क है जो रिटेल इन्वेस्टर को देखना चाहिए, एक लिक्विडिटी का रिस्क। देखिए, जब बुल मार्केट होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब लिक्विडिटी की बात करते हैं, जैसे हम लोगों को एक चीज़ बहुत पुराने बाजार के दिग्गज लोगों से सीखने को मिला, जिससे हमने लिक्विडिटी एनालिटिक्स बिल्ड किया, कि जब तेज़ी आती है ना, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि छप्पड़ फाड़ के पैसा आता है। आपको लगेगा नहीं कहाँ से पैसा आ गया, अभी कोई चीज़ इशू सब्सक्राइब हो गया, मालूम चला वो तो 600 टाइम्स हो गया, ओके, 40,000 करोड़ का डिमांड आ गया ओवरनाइट। वो आपको समझ ही नहीं आएगा लिक्विडिटी कहाँ से आ गई इतनी बड़ी। उसी तरह जब मंदी आती है तो आप देखते हो कि सप्लाई रुकती ही नहीं है। आपने सप्लाई बाई की है, कंटिन्यूसली सप्लाई आती, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ज़मीन फाड़ के शेयर निकल आते हैं, ओके। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी लिक्विडिटी होती है। अब इस थीसिस को इस तरह समझना है कि जब पीक ऑफ द साइकिल आता है तो लिक्विडिटी हाई होती है, उस समय आपका माल बिक जाता है, ओके, जो हम अपने एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं। अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी कहीं हाइप क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना आना चाहिए, ओके। सिमिलरली जब बाजार में करेक्शन बहुत शार्प होता है, ओके, शुरू की करेक्शन में बाजार में शेयर बिकता ही नहीं है, आपका लो वॉल्यूम पे बाजार डेप्थ उड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली बायर डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई जोर से माल बेच गया, बायर ही नहीं है, तो आपका लो वॉल्यूम पे बाजार घटता चला जाता है, ओके। और एक्सट्रीम वॉल्यूम कब होता है, एग्जैक्टली एट द बॉटम। ये तो कोई इंस्टीट्यूशन आके बड़ा शेयर ले लेता है, या कोई फैमिली ऑफिस आके बड़ा शेयर ले लेगा, कि बॉटम ऑफ द साइकिल। तो हमको लिक्विडिटी रिस्क भी रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आना चाहिए। बहुत लोग बहुत सारे शेयर ले लेते हैं, फिर वो बिकते नहीं हैं। अच्छा, आप उनको बोलो, अरे मेरा तो 5,000 शेयर था, मेरा तो 10,000 शेयर, वो तो बिक ही जाएगा। तो ऐसा कर करके एक दो स्टॉक नहीं, बहुत सारी चीज़ों में वो शेयर बिक जाते हैं। और शुरू में जब करेक्शन होता है 10, 15, 20%, 30%, तो लोगों को समझ ही नहीं आता है। जब वो करेक्शन 60-70% होता है तो लोग जागते हैं कि ये तो इतना बड़ा गिर गया, और फिर वो बिकता नहीं है। फिर आप ही उसका बॉटम बना के निकलते हो, तो वर्चुअली आपका ही बॉटम में कैपिचुलेशन होता है। तो लिक्विडिटी रिस्क भी मैं कंसंट्रेशन रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क दोनों पे एम्फेसिस रखूँगा। अभी इतना हम एआई के बारे में सुनते हैं न्यूज़ में, एंड लॉट ऑफ बिजनेसेस हैव स्टार्टेड यूजिंग इट आल्सो. हाउ डू यू सी दैट impacting the asset management space? Generally, money managers, how you think they will have to use this eventually in their decision making process? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर हम लोग अपना बात करते हैं, तो अभी एआई और एमएल जैसे टर्मिनोलॉजी अभी स्टार्ट हुए। हम लोग करीब करीब 30 साल से हमारी अपनी थीसिस है, इसको हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं, ओके। सो एक तरह से क्वासी एआई ही है, ओके। लेकिन हम लोग पहले इसको कैसे बिल्ड किया, हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट करके प्रिडिक्ट करते हैं। तो हम लोग भी मशीन को यूज़ करते हैं, तो हम लोग तो बहुत टाइम से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, अभी एआई आने से आपकी वो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स का एडवांटेज मिल गया है। थोड़ा मशीन जो खाली प्रोसेस करती थी, अभी आपकी मशीन भी इंटेलिजेंट हो गई है। तो इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग डिफरेंट स्पेस से हो रहा है, तो उसका एडवांटेज तो है। जैसे हम लोग बहुत ओपनली बात करते हैं कि अगर ग्लोबली इतने डेटा पॉइंट चेंज हो रहे हैं, आप मैन्युअली या एक्सेल शीट में तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ओके। जैसे हम लोग मल्टीवेरिएंट्स मॉडल रन करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डेटा है रोज, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, इतना डेटा आपके पास रोज आता है, आप इम्पॉसिबल है आप उसको एनालाइज कर पाओ। तो आपको टेक्नोलॉजी लगता है, एआई एमएल जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर लगता है, आपको एनालिटिक्स लगता है। तो जो चीज़ हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वर्ल्ड अगर इतना डायनेमिक है, ओके, और डेटा पॉइंट्स रेगुलर चेंज होते हैं, मिनट टू मिनट चेंज होते हैं, ओके। अगर इतने डायनेमिक वर्ल्ड में हमें रहना है, तो हमारा मनी मैनेजमेंट स्टाइल क्यों स्टैटिक होगा? आज ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग उसी ढर्रे पे बैठे हुए हैं।
जो हमको 40-50 साल पहले सिखाया गया था कि लॉन्ग टर्म है, सब कुछ होल्ड करना है, सब कुछ अच्छा है, ओके, ये हम लोग 10 साल के लिए शेयर खरीदते हैं, हमको 1-2 क्वार्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको नहीं देखना चाहिए शॉर्ट, नो, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आज की तारीख में हम अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के हिसाब से नहीं एडजस्ट करेंगे या डायनेमिक रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसे हमको एक नई चीज़ें सिखाई गई हैं इस कंट्री के अंदर, चर्न नहीं करना चाहिए, चर्न इज़ बैड। भाई चर्न क्यों बैड है? अगर माहौल चेंज हो गया तो मैं अपना पोर्टफोलियो क्यों नहीं चेंज करूँगा? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें रिस्क एडजस्टमेंट का गेम है ना। अगर रिस्क का डेटा इतना स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपका रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए बहुत लोगों का रेलेवेंस ख़त्म हो गया। आपको मैं क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ। आज से 20 साल पहले ये हमने अपना करियर स्टार्ट किया था, और या 2000 के आसपास देखो जब इंडिया में फॉरेनर्स आए थे, FIS और FPI जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट किया था। आज अब वो सब जो लॉन्ग अकाउंट जिनको हम बोलते हैं कि कंसेप्ट है कि लॉन्ग अकाउंट्स हैं, हेजीज हैं, लॉन्ग अकाउंट्स हैं, या प्रॉप मनी है, हॉट मनी है। आज इन ग्लोबली टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनी निकाल के देखेंगे तो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, आप 10 साल पहले भी जाओ, 2008 तक भी जाओ, 2000 पोस्ट, तो वो जो टॉप 10 लोग दुनिया में थे आज वो टॉप 10 में नहीं आते हैं। आज आपको दूसरे लोग आ गए, ओके, चाहे वो पैसिव मैनेजर्स हों, चाहे वो एल्गो ट्रेडिंग करते हों, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हों, ओके, पूरा माहौल बदल गया है, ओके। अगर आपकी वो थीसिस इतनी बढ़िया थी तो आज आप टॉप 10 में होते, ओके। तो आप चेंज नहीं हुए तो इंडिया में नहीं, दुनिया ने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो आपका रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग की फिलॉसफी है बीइंग रेलेवेंट। हम लोग हमेशा बोलते हैं बस वक्त के साथ को आपको नई चीज़ें अडॉप्ट करना पड़ेगा, और हम लोग तो खुद स्ट्रगल करते हैं, इतनी चीज़ें फास्ट चेंज हो रही है, हम लोग उसको कोप अप नहीं कर पाते। अगर आप बोलो कि मैं चेंज ही नहीं होऊंगा और ये सब चीज़ें मैं अडॉप्ट ही नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम है। बट थोड़ा कहीं ना कहीं हाइप भी ज़्यादा हो गया है, ओके, उससे भी बचना चाहिए। अब जैसे लोग बोलते हैं कि AI आ गया तो टेक्नोलॉजी कंपनी ख़त्म हो जाएंगी, इनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। पहले यही चीज़ें आई थी, क्लाउड आ गया, ये सब तो अर्ली 2010s में बोला था कि डिजिटल आ गया, तो ऐसा नहीं है। देखिए हाँ, हर टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी आती है, ओके, आपका सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है, ओके। आपका जैसे अगर आपके यहाँ 10 प्रोग्रामर काम करते हैं, आपको लगता है कि ये सारा काम अभी 2 ही कर सकते हैं, तो आपके पास काम, अगर ग्रोथ फेज में तो आपके पास काम बहुत है। मैं अपने 10 प्रोग्रामर क्यों निकालूंगा, मैं उनको और एफिशिएंट करूंगा, 10 और ऐड नहीं करूंगा, लेकिन उनको मैं अपना काम और बढ़ाएंगे। तो ये जो थीसिस बिल्ड हो गई कि रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, देखिए चेंजेस होते हैं, क्या इंडिया कंपनी अडॉप्ट नहीं करेंगी? बिल्कुल अडॉप्ट करेंगी, बट थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है कि मे बी हम लोग थोड़ा पीछे हैं उसके। बट इसको मानना कि इसके कारण ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लोग जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है, एफिशिएंसी आएगी तो देखिए जो आदमी एफिशिएंट है वो सर्वाइव वैसे भी करने वाला है। तो आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, चाहे आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके करिए। आप अगर टेक्नोलॉजी की अर्ली अडाप्टर नहीं है, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। बट ये क्रिटिसिज्म इंडियन IT सेक्टर स्पेसिफिकली, बिकॉज आपने वो एग्जांपल लिया, ये बहुत रिपीटेटिवली आया। बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ माई कॉलीग्स एट बिजनेस लाइन, उन्होंने डाउनग्रेड किया था पूरा IT इंडस्ट्री को, दिस इज अर्ली 2010s में, बिकॉज वो डिजिटल ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा था उनका। तो it's a repetitive problem that investor class doesn't have faith in the IT industry to perform, but they still perform. They prove them wrong. So आप बोल रहे हैं कि ऐसा गुंजाइश है ज़्यादा वापस होने की? 3 साल के अंदर आपको बहुत सारे रेडिकल चेंज सब अडॉप्ट कर लेंगे। सी अल्टीमेटली AI को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग तो चाहिए ना, उसके लिए भी जिस तरह का सिस्टम है उसको, उसके लिए भी प्रोग्राम किसी को लिखना है, उसको अडेप्ट करने के लिए आपको कस्टमाइजेशन तो भी आपको आदमी लगने वाला है। तो हम ये सोच लें कि सब लोग, ठीक है ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, ग्रोथ से ज़्यादा देखिए इम्पैक्ट अपने बाजार में क्या है ना, अर्निंग्स से ज़्यादा। जो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में क्या ड्राइव करता है, आपको अर्निंग्स मोमेंटम भी चाहिए और मल्टीपल एक्सपेंशन भी चाहिए, इसको हम P रेशो बोलते हैं, या कोई भी मल्टीपल हम देखें। तो जब साइकिल आपके अनफेवर जाती है, ओके, जैसे भाई IT सेक्टर, हम लोग भी बेरिश हैं, हम लोग को सितंबर 2021 से काफ़ी बेरिश है, हम लोग शायद ही फंड हाउस हैं, यहाँ कुछ भी IT स्टॉक है नहीं हमारे पास, लेकिन हम उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे अपॉर्चुनिटी की तरह आइडेंटिफाई भी करेंगे कि चांस मिलेगा तो लेंगे भी। तो जब P डिटोरेशन होता है ना कोई एडवाइड टेरिटरी स्टॉक का, तो आपको प्राइस में इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है।
उनकी अर्निंग्स इरोजन इतनी बड़ी नहीं है जितना मल्टीपल इरोजन है। ओके, अगर आप बोलोगे कि टॉप 5 कंपनी उठा के देखो तो अर्निंग्स बहुत 2-3% कम हो गया है, कोई बहुत बड़ा डाउनग्रेड्स नहीं आए हैं, लेकिन मल्टीपल कोलैप्स हो गए और वहाँ आपका पैसा लग जाता है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं कि हमेशा बोलते हैं कि भाई अर्निंग फोरकास्ट इज इम्पॉर्टेंट बट मल्टीपल फोरकास्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। वो हम लोग परसेप्शन एनालिटिक्स के थ्रू करते हैं। ये जो परसेप्शन, स्पेसिफिकली परसेप्शन के बारे में आपने बात किया, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स लाइक से डिफेंस पीएसयूज, देन इंफ्रा का भी बीच बीच में आता रहता है बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। तो उस पर भी काफ़ी हाइप था एंड देन नाउ बिकॉज वो मॉडल चेंज हो गया ईपीसी से, नाउ दे गोइंग बैक टू हैम and they want to go to BOT also. So that means the risk in terms of raising capital is directly on the developers for infra per se specifically. तो ये changes जो आप बता रहे हैं वो हर सेक्टर में होता है, बट सस्टेन कहाँ पे होगा, दैट इज आई गेस द क्वेश्चन। बिकॉज कभी कभी लगता है कि ये इंडिया कितना इंफ्रा बिल्ड करेगा। आई नो स्कैर्सिटी है, बट कितना इंफ्रा बिल्ड कर सकते हैं, कैपेसिटी भी है क्या हमारे यहाँ पे, स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि हमें अगर अपना बैकग्राउंड भी समझना चाहिए। अब जैसे चाइना की बात करते हैं तो वह वो लोग बोलते हैं कि चाइना में, लेकिन चाइना हमसे कम से कम 50 साल आगे है हर चीज़ में। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतना बिल्ड कर लिया हो। अब कोई भी आपने रिसोर्सेज बिल्ड कर दिए, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हो तो आपके रिटर्न्स रेशियो गिर जाते हैं। ओके, तो चाइना में कैपेसिटी एक्सेस है, उसका प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो कैपेसिटी है ही नहीं। ओके, तो हमें तो उसको बिल्ड करना है इररिस्पेक्ट ऑफ कोई भी गवर्नमेंट आए, और माइंडसेट है एटलीस्ट। हम, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट देखता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट देखता हूँ, एक माइंडसेट आ गया, अभी चेंज हो गया। लास्ट 15-20 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है कि लोगों को ग्रोथ समझ में आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज़ मस्ट। अगर आपका रोड्स बिल्ड नहीं होंगे, पोर्ट्स नहीं बिल्ड होंगे, एयरपोर्ट नहीं, तो बाकी आपका बिजनेस वैसे ही बिल्ड नहीं होने वाला है। तो आई थिंक वो एक स्पेस है जिसको हमको देखना चाहिए। बट जैसे आपने डिफेंस की बात करी, देखिए अगर इतना जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है और आज की तारीख में मिस्टर ट्रम्प इज़ ऑन द ड्राइविंग सीट, वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं, ओपनली बोलते हैं कि आपका बजट्स बढ़ाइए, बट आपको समझना चाहिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। आज सबसे बड़ा सप्लायर तो देखिए रशिया अमेरिका नहीं है। ओके, इंडिया इज़ ऑल्सो कमिंग अप। ओके, तो वो हर आदमी अपने फ़ायदे का नैरेटिव आपको समझाया जाएगा। लेकिन अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से देखूं कि अगर ग्लोबली इतना टर्मोइल है, पर्टिकुलर जियोपॉलिटिक्स टर्मोइल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफेंस कंपनी का मल्टीपल एक्सपेंडेड रहेगा। ओके, और ये फेस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। कोई चीज़ डिफेंस में होती है तो ये एक डिकेड का भी अगर मैं व्यू लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। हो सकता है कि आपकी अर्निंग डिसअपॉइंटेड हो, कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट हो जाए। काफी सारे इन्वेस्टर्स आर डिसअपॉइंटेड विद अर्निंग सीजन राइट नाउ फॉर डिफेंस स्पेसिफिकली। तो उस तरह का आपका छोटा मोटा हाइप ज़रूर हो गया। अगर आप इसको बोलो कि इसको, जैसे हर्षद फेस को मैं मैनिएक फेस बोलता हूँ इंडियन कैपिटल मार्केट, मैनिएक फेस था, उस तरह का मैनिएक फेस इंडिया में आया है कि इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स में आया, कि रेलवे में आया, नहीं आया है। यूफोरिया हो सकता है और वो हुआ भी है। तो वो यूफोरिक फेस में कोई आता है, उसके बाद थोड़ा करेक्शन होगा, कंसोलिडेशन होगा, फ्यू मंथ्स हो सकता है, फ्यू क्वार्टर्स भी हो सकता है। अगर आप उसको बोलो कि वो लॉन्ग टर्म पीक हो गया, तो मुझे नहीं लगता है। इंडिया में लॉन्ग टर्म थीसिस के हिसाब से डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, और ये अपनी वैल्यू थीसिस के भी हिस्से हैं, तो इनमें तो हमको बेनिफिट मिलेगा ही लॉन्ग टर्म में। सर लास्ट 2-3 क्वेश्चंस ना, अभी ना ये जो नया एक प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च हुआ है सेबी ने, SIF करके, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, इट हैज़ अ हायर थ्रेशोल्ड 8 to 10 lakhs के ऊपर, 10 lakhs के ऊपर। तो एक रिटेल इन्वेस्टर हु इज लुकिंग फॉर सच स्ट्रेटजीज, डू यू थिंक दैट दे शुड ऑप्ट फॉर इट? What kind of mindset someone should have when they are looking at this product, especially a retail investor? देखिए, पहली बात तो हम लोग रेगुलेटर के बहुत हमको आभार व्यक्त करना चाहिए कि फॉरवर्ड लुकिंग है। ओके, अब जैसे SIF में शॉर्टिंग का ऑप्शन है आपके पास। ओके, 25% हम नेकेड शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अब इंडिया में थोड़ा ना, जैसे हम किसी को बोलें कि ये हेज फंड है, हेज फंड जैसा कंसेप्ट है, ओके, थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन है। करेक्ट, ओके, जबकि ग्लोबली हेज फंड को एब्सोल्यूट रिटर्न प्रोडक्ट में दिया जाता है कि उनका रिस्क प्रोफाइलिंग कम होता है। ओके, हमको पहले अगर इसको सिंपल अरिथमेटिक देखें, पूरे स्टैटिक नंबर देखें,
तो अगर कोई पोर्टफोलियो मेरे पास हेजिंग का ऑप्शन है या नेकेड शॉर्ट करने का ऑप्शन है, इसका मतलब मेरा जो रिस्क मैट्रिक्स है पोर्टफोलियो का, कोई अगर हम डेविएशन देखें या बीटा देखें तो हम एक्चुअली में कम कर रहे हैं। तो अगर हमको ये चीज़ समझ लें कि SIF रिस्की है तो नहीं है, ओके, पहला पॉइंट, ओके। उसका परसेप्शन कुछ भी हो, ओके, बट रिस्क मैट्रिक के हिसाब से एक्चुअली में बेटर प्रोडक्ट है। अगर हम इस प्रोडक्ट को, जैसे अगर हमसे कोई पूछे क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप 50% म्यूचुअल फंड में रखिए, 50% SIF में रखिए। दो एडवांटेज है। जैसे म्यूचुअल फंड में अनहेज एक्सपोजर ज़्यादा, बेसिकली लॉन्ग बाइसेस है, ओके। जब आप लॉन्ग बाइसेस का प्रोडक्ट चलाते हो, बुल रन में हो, तो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी अल्फा जनरेट होता है, तो आपको हेल्प करेगा। लेकिन जब फेस अपना आता है जहाँ पे करेक्शन है, कंसोलिडेट डिफ़िकल्ट फेस है या बेरिश फेस है, उसमें आपको SIS में अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। आपका डाउन साइड तो प्रोटेक्ट करेंगे। कभी कभी हमको शॉर्ट करके पैसा बनाना सीखना चाहिए। देखिए, कभी आप अगर आप गौर करें कि जब मार्केट में रैली आती है तो आपने जितना पैसा एक साल में बनाया कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, 1 या 2 साल में, और कोई भी कारण से उसका डाउनग्रेड आता है या उसका अर्निंग्स कोलैप्स आता है या कोई इवेंट अनफोल्ड होता है, ओके, जो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो जितना आपने रिटर्न लॉन्ग करके बनाया उतना ही रिटर्न शॉर्ट करके 2 हफ्ते में आ जाएगा आपको, या 15 या 1 महीने के अंदर, ओके। कभी कभी तो आपको 2-3 दिन के अंदर उतना बड़ा रिटर्न आ जाता है। तो जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अगर कोई कैपिटलाइज कर पाए तो वहाँ पे भी अल्फा बनता है, ओके। तो अगर हम इसको बोलेंगे तो मैं बोलूँगा इससे कॉम्बिनेशन देखना चाहिए आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन को भी फैक्टर करके कॉम्बिनेशन में अगर आप ये प्रोडक्ट को रन करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ओके। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे भी इंडिया में हम लोग बात करते हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जुलाई 24 या सितंबर 2024 तक जो अपने 4-5 साल से बुल रन देख रहे हैं, उसका ईजी फेस खत्म हो गया। ईजी फेस बुल रन इज ओवर। हम लोग बुल रन में हैं, यस, बट ये डिफ़िकल्ट फेस है बुल रन का। तो इतने आराम से आपका पैसा नहीं बनेगा, और आप देखेंगे लास्ट 1 साल में पैसा बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको हेज करके या आप शॉर्ट करके भी, आपको लॉन्ग करके अल्फ़ा क्रिएट करना सिखाया गया है, शॉर्ट करके अल्फ़ा कैसे जनरेट होता है वो नहीं समझाया किसी ने। हम लोग शॉर्ट करके लोग हेजिंग का एंगल देखते हैं, लेकिन शॉर्ट करके अल्फ़ा भी जनरेट होता है, प्रोवाइडेड यू प्ले इट राइट। इट्स नॉट ईजी। तो हमें इसको कॉम्बिनेशन के तौर पे देखना चाहिए, और ये अच्छा प्रोडक्ट है, बट आइसोलेशन में नहीं देखूंगा मैं इस प्रोडक्ट को, Okay. मैं इसे कॉम्बिनेशन में देखूंगा। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं तो आप उसको ब्लेंड अपने रिस्क एपिटाइट से कर लीजिए, लेकिन अगर 2 प्रोडक्ट को साथ में लेके चलेंगे तो आपका रिस्क एडजस्टेड जो मैट्रिक्स होगी, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, इससे और बैलेंस होगी। सर, एक क्वेश्चन बिफोर आई पोज माई लास्ट क्वेश्चन, ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दें क्या होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन बट वो लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, स्पेसिफिकली अगर आप समझा सकें। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर एक सिंपल तरीके से, जैसे लोग बीटा देखते हैं पोर्टफोलियो का, भाई हमने 10% रिटर्न कमाया, 2 स्कीम से, ओके, तो 2 स्कीम ने, दोनों ने 10% रिटर्न कमाया, बट एक स्कीम का लेट से बीटा 1.5 है और दूसरे का 1.2 है, ओके। तो ऑब्वियसली जिसका बीटा कम है और 1.2 है, वो उसने कम रिस्क लेके ज़्यादा अल्फा वन जनरेट किया, तो वो स्कीम को आपको फैक्टर देखना है। अब इसके ये तरह का जो डेटा है हमारी फैक्ट शीट में तो मिलता है, बहुत से वेबसाइट पे भी मिलता है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड लोग, काफ़ी लोग इस डेटा को देखते हैं, तो उस पर फोकस करना चाहिए कि पर्टिकुलर स्कीम का बीटा कितना है, पर्टिकुलर स्कीम के स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे हैं। बट खाली बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन से भी आंसर नहीं मिलता, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप सॉर्टिनो रेशो, शार्पर रेशो या जेंसन अल्फा, इस तरह के अगर पैरामीटर देखेंगे तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये रेशियोज हमें देखनी चाहिए। अगर कोई स्कीम को मैं एवेल्यूएट कर रहा हूँ तो ये मेरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की मैट्रिक्स भी मेरे को समझ में आनी चाहिए, और ओवर अ पीरियड टाइम आपको उसको एक पकड़ आएगी। लास्ट क्वेश्चन सर, आपका जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है क्वांट में, आपने इसका एवोल्यूशन कैसे देखा है? हाउ हैज़ इट चेंज्ड ओवर द इयर्स? देखिए, जिससे मैंने शुरू में बात करी थी, हम लोग गलती करके सीखे। तो जैसे पूरा वीएलआरटी का जो हमारा फ्रेमवर्क है, अब जैसे इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि हम लोगों को बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई, हम बचपन में हमारा स्टार्टिंग ऑफ करियर इन मार्केट्स, कि वैल्यूएशन पे फोकस करो, वैल्यूएशन ही सब कुछ है, वैल्यूएशन ही भगवान है आपके लिए, ओके। तो वैल्यूएशन
इज इम्पॉर्टेंट, वो हमारा बैकबोन है, ओके। बट हम जब पूरा एनालिसिस करते हैं तो हम अपने थीसिस में वीएलआरटी में वैल्यूएशन एनालिटिक्स को सिर्फ 1/3 वेटेज देते हैं, ओके ओके। 2/3 वेटेज हम बिहेवियर डेटा को देते हैं, रिस्क एपेटाइट 1/3 डेटा, वो आपके सेंटिमेंट्स डेटा, आपका बिहेवियर थीसिस कैसा है, ओके। अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव है, जिसमें आपको बोला रिस्क एपेटाइट पीक पे आपकी ज़्यादा होती है, आपकी लिक्विडिटी क्या है, ओके। तो लिक्विडिटी एनालिटिक्स भी हमारा, तो हम लोग 1/3 वेटेज देते हैं। और टी हमारा टाइम है, तो टाइम इज़ ऑल्सो अ एनालिटिक्स, ट्रेडिंग नहीं है। Timing is also analytical tool, is a risk management tool. तो टाइमिंग एनालिटिक्स इज अ फंक्शन ऑफ ऑल 3 एनालिटिक्स, ओके। तो अगर हम उसको कंबाइन करके आंसर देते हैं, जैसे हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से समझाते हैं, फंडामेंटल द आत्मा, लिक्विडिटी द प्राण एंड सेंटिमेंट द माया, ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना लिक्विडिटी के आपका काम होता नहीं है, ओके। आपको आइडियाज़ बहुत अच्छा लगता है, वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। पैसा भी है, लेकिन आपकी एज 75 हो गई है, 62 हो गई है, आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो भी आप डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन, जैसे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी देखते हैं, हम लोग ऐसा मार्केट में, स्टॉक्स पे, सेक्टर में, और किसी भी एसेट क्लास के ऊपर ये स्ट्रेंथ हम लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू मिस्टर टंडन, थैंक्स विवेक। तो ये था बाजार एंड बियॉन्ड का आज का एपिसोड। आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। संदीप टंडन ने समझाया कि इंट्यूशन और डेटा ड्रिवन अप्रोच को कैसे बैलेंस करते हैं और लॉन्ग टर्म फोकस को कैसे मेंटेन करते हैं वाइल इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और कॉन्वर्जेशंस के लिए एम स्टॉक की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट वाइजली। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.